Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Abdul Hussain, your mathematics teacher. Now the second lecture of chapter number 5 second year. फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने एक फार्मूला ही प्रूव किया था, बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब इसके बाद कुछ फार्मूले बेसिकली और भी हैं जो हमने प्रूव करने हैं। इसमें जो हमारे पास पहला रूल है या पहला फार्मूला है, सेकंड फार्मूला ही बनता है, लेकिन एक हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। हमने ये प्रूव करना है किस रूल से? एंटी डेरिवेटिव से। क्या मतलब? रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल we will take a definition of derivative, formula for derivative. We know that if we find the derivative of f of x raised to power n by using power rule, extended power rule, n into f of x raised to power n minus 1 d by dx of f of x। ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं। अब इसी को आगे मैं दोबारा यूज करता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. n plus 1 is a constant. So, डिनोमिनेटर में n plus 1 इसी तरह रहेगा। न्यूमरेटर के अंदर जो f of x raised to power n plus 1 है, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। That is n plus 1 into f of x raised to power n plus 1 minus 1 again d by dx of f of x. n plus 1 is cancelled. Now that is f of x raised to power n derivative of f of x, f prime of x. So we can say that f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 का जो डेरिवेटिव है वो है f of x raised to power n into f prime of x. So, anti-derivative, reverse of derivative or integration of f of x raised to power n into f prime of x must be f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. क्यों? इसलिए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनता है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होनी चाहिए, एंटी डेरिवेटिव ये होना चाहिए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to power n into f prime of x dx which is equal to f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c is arbitrary constant. Here is also
n is not equal to minus 1. So, if the function in the form of f of x raised to power n into f prime of x dx, it must be f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. But condition n is not equal to minus 1. In the second rule, second formula of integration. Now, we come to next formula of integration. That is to prove integration of f prime of x divided by f of x dx, which is equal to natural log of f of x plus c. C is arbitrary constant. Again use derivative. इस तरह कि since d by dx of natural log of f of x. What is derivative of natural log? 1 divided by f of x into derivative of again f of x. Derivative of f of x denoted by f prime of x divided by f of x. So, if derivative of natural log of f of x is f prime of x divided by f of x, then integration of f prime of x divided by f of x must be natural log of f of x. So, we can say that integration of f prime of x divided by f of x dx is natural log of f of x plus c is arbitrary constant. So, the third formula of integration is integration of f prime of x divided by f of x dx is natural log of f of x plus c. Also, another formula, integration of f of x into f prime of x dx, which is equal to e raised to power f of x plus c. मतलब ये, अगर e की पावर के अंदर f of x है, साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन e रेज टू पावर f of x प्लस c होनी चाहिए। मैंने पहले कहा व्हाट इज वेरिफिकेशन, अगर इसका डेरिवेटिव ये बनता है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, कैलकुलेट करके चेक कर लें। दैट इज d by dx of e raised to power f of x plus c, what is e raised to power f of x d by dx of f of x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, so e raised to power f of x into f prime of x. So the derivative of e raised to power f of x is e raised to power f of x into f prime of x. Then we can say that the integration of this function must be e raised to power f of x plus c. c is the constant का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरह अगर हम बाकी फार्मूले चेक करें कि इंटीग्रेशन ऑफ cos of f of x into f prime of x dx, which is equal to sin of f of x plus c,
Why? Because if we are find the derivative of sine of f of x, it will become cos of f of x into f prime of x dx. यही बनेगा। इसी तरह अगर हम यहां पे आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, that is tan inverse of x plus c. Why? Because the derivative of tan inverse of x is 1 divided by 1 plus x square. Similarly, if we take integration of f prime of x divided by 1 plus f of x whole square into dx, it will become tan inverse of f of x plus c. कि अगर tan इनवर्स ऑफ f of x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो उसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस f ऑफ x होल स्क्वायर प्लस c बनेगा। इस तरह मैं बहुत से फार्मूले लिख सकता हूं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तमाम फार्मूले नहीं लिखे जा सकते, जस्ट बेसिक रूल याद किए जा सकते हैं। इसलिए आप लोग ये चंद एक बेसिक रूल याद करेंगे इंटीग्रेशंस के। फार्मूले लिखने अगर शुरू हो जाएं, ये बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, फार्मूले ख़त्म नहीं होंगे। और ना ही आप लोग के सामने मैं इतने फार्मूले लिख दूं तो आप याद कर सकेंगे। बेसिक रूल थोड़े होते हैं, फार्मूले ज़्यादा होते हैं इंटीग्रेशन के, लिहाजा ओनली बेसिक रूल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, we have to find integration of x cube minus 5x plus 7 raised to power 4 into 3x square minus 5 dx. अब चेक करते हैं 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5x का माइनस 5। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन पावर को छोड़ के ये साथ मौजूद है। क्या मतलब? ये इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x dx की फॉर्म में है। क्यों? कि यहाँ पर n इक्वल टू 4 है और f ऑफ x x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 है, तो फिर f प्राइम ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 5 है। ये क्वेश्चन आपका इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा मैं इसकी इंटीग्रेशन इसी डेफिनेशन को यूज करके ले सकता हूं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. In this case n is equal to 4, not equal to minus 1. Take integration, then we can say that integration of x cube minus 5x plus 7 raised to power 4 3x square minus 5 dx, which is equal to क्या बना? f of x की पावर n plus 1, that is x cube minus 5x plus 7 raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c is a constant. What is n? 4 plus 1, that is x cube minus 5x plus 7 raised to power 5 divided by 5 plus c, the required answer.
अब अगर हर क्वेश्चन पे इसी तरह फार्मूले यूज़ करें कि बहुत शॉर्ट होता है, क्वेश्चन यही होगा। लेकिन इन तमाम के तमाम क्वेश्चनों के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस बाय सुपोजिशन सॉल्व किए जाएंगे। किस तरह कि भाई आपके पास f ऑफ x मौजूद है, साथ f प्राइम ऑफ x भी है, तो फिर आप f ऑफ x को यूज पोज करके इनको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। यही आपका प्रॉपर मेथड होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर ये काम नहीं होगा। डायरेक्ट एक दो लाइनों में ऑब्जेक्टिव सॉल्व की जाएगी, ये डायरेक्ट फार्मूले यूज किए जाएंगे। इन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट, बट इन द क्वेश्चन वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो कम टू द एग्जाम्पल, सेम सिमिलर एग्जाम्पल रिपीट करूंगा एंड देन क्वेश्चन नंबर 2। कम टू द एग्जाम्पल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, evaluate by method of substitutions। रैंडमली आपको नहीं कहा कि भाई वैल्यू कैलकुलेट करो, by method of substitutions। इसका ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर एग्जाम्पल में गिवन है, व्हाट इज गिवन? गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 रेज टू पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 dx। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। किस तरह पता चलेगा कि क्या सपोज करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही रूल है, बाकी 3, 4 में आगे साथ साथ चलेंगे। जिस फंक्शन की पावर n है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ अगर है तो सपोज करेंगे। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है, अगर उसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है तो इस फंक्शन को सपोज करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है उस फंक्शन को सपोज किया जाएगा। अब बाज़ औक़ात नहीं भी होता, बनाना पड़ता है, लेकिन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नॉट अ फंक्शन। इसको चेक करते हैं। x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 dx के साथ मौजूद है, लिहाजा सपोज करेंगे, सपोज दैट u is equal to x क्यूब माइनस 5x प्लस 7। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई dx आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x का माइनस 5 और 7 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। अब dx को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिहाजा du आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 dx। इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे का सारा du बन जाएगा, अंदर जो फंक्शन है u बन जाएगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फॉर्म आ जाती है। Therefore we can say that integration of
एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 रेज टू पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 dx. It will become integration of u raised to power 4 into du. ये सारे का सारा du और अंदर u आ गया. एक सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे. कौन सा? कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू dx, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c. बेसिक फार्मूले की तरफ चले गए. अब ये क्या मिला? u की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस c. व्हाट इज u? एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c. दोबारा u की वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये प्रॉपर मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा. लेकिन जून शॉर्ट करेंगे नंबर कटेंगे. सिमिलरली बी पार्ट. व्हाट इज बी पार्ट? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9x प्लस 7 किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx. 9x प्लस 7 f ऑफ x. व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? 9x का 9 नहीं ऊपर, लेकिन 9 इज द कांस्टेंट. इसलिए हम इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9x प्लस 7 लिख सकते हैं 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 7 इंटू dx. क्या मतलब? 9x प्लस 7 का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है 9. अब भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज कर सकते. वाई? गिवन इन द क्वेश्चन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. हम इस फॉर्म में ले आए हैं कि हम इसको सपोज कर सकें. लिहाजा सपोज करेंगे कि लेट u is 9x प्लस 7. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू 9. dx को मल्टीप्लाई करो, du 9 इंटू dx, 9 इंटू dx सिंगल du 9x प्लस 7 u तमाम वैल्यू उठाकर इस वन इक्वेशन के अंदर लगा देंगे. इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9x प्लस 7 इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय u, देन विच इज इक्वल टू integration of 1 by u into du as integration of 1 by u natural log of u plus c natural log of what is u 9x plus 7 plus c. हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 by x है, तो फिर 1 by x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होनी चाहिए. इस तरह 1 by u की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ u. सिमिलरली बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है सारे का सारा इसी मेथड से सॉल्व होगा और यही आपका होमवर्क होगा, कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं होगा. तो
इस तरह आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर के अंदर आज के पीरियड के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।